السلام علیکم۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا بچہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لی تو یوں سمجھ لیں آپ نے اپنا سرمایہ محفوظ کر لیا۔ ایک مضبوط ذہن کا انسان دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے ایک مضبوط ذہن کا بچہ تیار کر دیا تو آپ نے نہ صرف اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لی بلکہ وہ بچہ آخرت میں بھی آپ کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ تو بچے کی تربیت کیسے کی جائے؟ اگر ایک بھی بچہ کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ نظام الملک توسی نے جب درس نظامیہ کی بنیاد رکھی تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں سرمایہ ضائع کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا بچت ہوگی؟ تو نظام نے کہا کہ اگر ایک بھی بچہ کامیاب ہو گیا نا تو میرا سرمایہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیے ابن رشد اور ان جیسے بہت بڑے بڑے لوگوں، امام غزالی وغیرہ نے وہاں سے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا، نہ صرف اپنا بلکہ اس ادارے کا نام روشن کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو کیسے گرو کیا جائے۔ خاص طور پہ آج ہم 8 سے 12 سال کے بچے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ اس عمر کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ یہیں پہ انسان کا کردار بنتا ہے اور یہیں سے بگڑ جاتا ہے۔ تو کچھ ٹپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ بچے کو اپنے آپ میں ایک محفوظ پناہ گاہ دیں۔ اس کو یہ باور کروائیں کہ اس کے ساتھ باہر زندگی میں جو بھی معاملات ہو جائیں، جو بھی بات ہو، یہ جو عمر ہوتی ہے 8 سے 12 سال، یہ بڑی ہی وولیٹائل قسم کی عمر ہوتی ہے، اور بچے کے ساتھ باہر کئی قسم کے پریشر ہوتے ہیں، ساتھیوں کے پریشر ہوتے ہیں، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، بچہ شائی ہوتا ہے تو وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے بچے کو یہ باور کروانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، وہ آپ کے ساتھ آ کے ایز اے دوست شیئر کر سکتا ہے، اور اس میں اس کو کوئی شرم اور جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کو بچے کے مسائل کا بھی پتہ چلے گا اور آپ ان کو حل بھی کر سکیں گے۔ نمبر 2 ہم دیکھیں گے کہ بچے میں اس عمر میں تجسس ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ کیوں ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے تجسس کو مہمیز دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو ڈسکریج نہ کبھی کریں کہ وہ کہے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، چپ کر جاؤ۔ یہ بہت غلط رویہ ہوتا ہے، اس سے بچے کی شخصیت بالکل دب جاتی ہے، بلکہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو اس کی تجسس کو مہمیز دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو پوچھنے دیں، اور بلکہ اس کو فوری جواب بھی نہ دیں، اس کو خود سوچنے کا تھوڑا موقع دیں کہ آپ سوچو یہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں تجسس ابھاریں بلکہ، اور اس کے بعد اس کو پھر اس کا تسلی بخش جواب دیں تفصیل کے ساتھ۔ نمبر 3 بچے کی عادات بنائیں، قانون نہ لاگو کریں اس پہ۔ جیسے بڑوں پہ قانون لاگو ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے اشارہ کاٹا تو آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ نے بیلٹ نہیں پہنا تو آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ نے یہ کام کیا تو وہ آپ کو سزا ہوگی۔ اس بچے کو ایسے رول نہ بنائیں، بچے کی روٹین بنائیں۔ مثال کے طور پر صبح ٹائم پہ خود اٹھیں، بچے میں خود بخود ایک عادت ڈیولپ ہوگی کہ وہ ٹائم پہ اٹھے گا۔ سارے کام وقت پہ کریں، بچے میں بھی عادت ڈیولپ ہوگی کہ وہ سارے کام وقت پہ کرے گا۔ کبھی قانون شکنی نہ کریں، آپ کا بچہ بھی قانون شکنی نہیں کرے گا۔ اس میں یہ عادات پیدا ہو جائیں گی، پھر اس کو قانون پر کے تحت لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بچہ خود بخود ان چیزوں کو اپنا لے گا جو کہ معاشرے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ لہٰذا اس کی عادات بنائیں، نہ کہ اس پر کوئی چیز لاگو کریں، اور اس کی ہر کوشش کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی پذیرائی کریں۔ نمبر 4 اس کو جذباتی الفاظ سکھائیں، جذباتی الفاظ کی ادائیگی سکھائیں اچھے طریقے سے۔ مثال کے طور پر وہ غمگین ہے تو اس کو بتائیں کہ کس طرح سے اس کا اظہار کرنا ہے، اگر خوش ہے تو خوشی کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے، اگر وہ پریشان ہے
तो परेशानी का इजहार किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाएं। उसको जज्बाती अल्फाज की सही अदायगी सिखाएं, सही तरह से आसान तरीके से अल्फाज को अदा करना उसको सिखाएं। नंबर 5, बच्चे को वक़्त दें, हर सूरत में और हर रोज़। बच्चे को वक़्त की बहुत ज़रूरत होती है, बड़े को भी होती है, बच्चे को भी होती है। लेकिन बच्चे को इस गोल्डन एज में हम उसको गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा 8 से 12 साल की उम्र का जो बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत होती है। उसने बहुत कुछ इस वक़्त सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को उसने आगे लेके चलना होता है, लिहाजा उसको वक़्त हर सूरत दें। अगर आपके पास बिल्कुल भी फ़र्ज़ करें वक़्त नहीं है, बहुत मसरूफ़ हैं, खाने पे इकट्ठे बैठ जाएँ, खाने के वक़्त उसके साथ बातें कर लें, उसके बाद साथ बातें शेयर करें, उससे पूछें कि उसने आज किसको नया दोस्त बनाया, उसके साथ स्कूल में कौन-कौन से मामलात पेश आए, किस-किस ने उसके साथ क्या बात की। सिर्फ़ यही ना पूछें कि उसने कितना पढ़ा, उसने कितने नंबर ले लिए, उसने उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या रही है, उसके साथ बाकी बातें भी शेयर करें और उसको उसके साथ एक ऐसे घुल-मिल के वाला जो अंदाज़ है वो अपनाएँ, ताकि बच्चा अपने आप को बड़ा रिलैक्स फ़ील करे। नंबर 6, बच्चे को पढ़ने की आदत डालें और उस पढ़ाई के ऊपर जो उसने पढ़ा है उसको उसका रद्द अमल देने की तरफ भी माइल करें। उसने पढ़ा क्या है, उससे उसको समझ क्या आई है, उसने उससे नतीजा क्या अखज़ किया है और उसको कैसे आगे लेके चलना है और उसमें क्या खराबी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बच्चे को आदत बनाएं। उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ, अखलाकी कहानियाँ, हौसलामंद लोगों की कहानियाँ, दलेर लोगों की कहानियाँ, हीरोज़ की कहानियाँ, वो उसको कहानियाँ सुनाएं, पढ़ने की उसको ताकीद करें, उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दें और उसको इसमें उसकी हौसला अफजाई करें। नंबर 7, छोटे छोटे मसाइल बच्चे को खुद हल करने दें। छोटे छोटे मसाइल, मिसाल के तौर पर वो उसका कोई काम उलझ गया है तो उसको खुद उसको सुलझाने दें, कोई धागा उसका उलझ गया है तो उसको खुद सुलझाने दें, उसका कोई कुछ सवाल है कोई छोटा सा करने वाला है तो उसको कहें कि वो खुद उसको हल करने की कोशिश करे, अगर नहीं करता तो बाद में उसको फिर समझाएं, लेकिन पहले उसको चांस दें। उसको जब तक बच्चा खुद हकीकी सूरत हाल से नहीं गुजरेगा वो मसले को नहीं समझ सकेगा और वो अपने इल्म को नए मसाइल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब तक उसको तजर्बा नहीं होगा तब तक वो अपने इल्म को इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। लिहाजा छोटे छोटे मसाइल उसको खुद हल करने दें, उसके उस सर पर सवार ना हो। नंबर 8, बच्चों की शख्सियत की तारीफ करें हमेशा, उनको बकअप करें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसको कभी सरजश ना करें कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं, नहीं, उसको कहें कि आपने बहुत अच्छी मेहनत किया, आपने बहुत अच्छी काविश की है, आपने बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से काम किया है और उसको शाबाश दें। नंबर कोई अहमियत नहीं रखते, बच्चे की शख्सियत बनाएं, उसको एक मजबूत जहन दें ताकि वो उसके अंदर एक एतमाद पैदा हो, खुद एतमादी पैदा हो। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा एक मजबूत इंसान बनकर उभरेगा, वो माशरे के सारे मसाइल को हल कर सकेगा। अगर आप उसको डिस्करेज करेंगे कि आपके तो 1100 में से 1100 नंबर नहीं आए, एक नंबर कम आ गया है, तो वो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। तो आपने एक अच्छा बच्चा बड़ा करना है, एक डिस्टर्ब बच्चा पर बड़ा नहीं करना आपने। नंबर 9, उसको मरहलावार छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। मसलन उसको आप कहें कि अपने कमरे को खुद तरतीब दिया करे, उसको कहें कि अपने जूते खुद पॉलिश कर लिया करे, उसको कहें कि अपना बैग जो है उसको खुद तरतीब दे, उसको कहें कि अपने कपड़े इस्त्री कर लिया करे। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसके हवाले करें कि ये काम आपके ज़िम्मे है और ये आपने ही करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो जिम्मेदारियों को लेने के काबिल हो जाएगा और वो जिम्मेदारियों को लेने का आदी हो जाएगा। फिर बड़ा होके आपको मसला नहीं होगा, वो खुद ही सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। नंबर 10, उसका स्क्रीन टाइम फिक्स करें। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, हम ये कहें कि बच्चे को स्क्रीन से दूर ले जाएं, हम कहें कि उसको हमने मोबाइल नहीं देना, हमने उसको लैपटॉप नहीं देना, ये मुमकिन नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए।
बहुत सारे मुस्बत इस्तेमाल हैं लैपटॉप के, कंप्यूटर के, हमारा जो आईफ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसके बहुत सारे मुस्बत इस्तेमाल हैं। उसको इसके मुस्बत इस्तेमाल करने का तरीका बताएँ, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम लाज़मी फ़िक्स करें किसी भी तरीके से कि बेटा इस इतना टाइम है, आप 1 घंटा रोज़ाना देख सकते हैं या डेढ़ घंटा देख सकते हैं, और उसकी भी एक तरतीब बनाएँ कि फ़लाँ वक़्त आप इतना देख सकते हैं, फ़लाँ वक़्त आप इतना देख सकते हैं। बच्चे को एतमाद में लें और उसका टाइम फ़िक्स करें, क्योंकि अगर बच्चा सारा दिन, सारा टाइम स्क्रीन पे ही लगा रहेगा, तो उसके असाब भी तबाह हो जाएँगे, उसकी नज़र भी तबाह हो जाएगी और उसकी शख्सियत भी तबाह हो जाएगी और आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। लिहाज़ा स्क्रीन टाइम को लाज़मी फ़िक्स करें। इसको अवॉइड तो किया नहीं जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि हम स्क्रीन टाइम को अवॉइड कर दें कि जी आप ना देखें, बच्चे को मोबाइल नहीं देना, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और नंबर 11, बच्चे को इखलाकी आगाही दें। इखलाक क्या है? क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे ना, तो सबसे भारी जो अमल होगा वो अच्छा इखलाक होगा। तो बच्चे को बताएं कि किस तरह से किसी के साथ, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने से छोटों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, इस्लाम में पहल करनी है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, अच्छे अखलाक क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं, वो सारी चीज़ें उसको समझाएं। इस उम्र में ये सारी चीज़ें समझाना उसको बहुत ज़रूरी है। उसका पाबंद उसके उसके उम्र पर अमल करने वाला बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 12, ये हमारा आखिरी पॉइंट है। उसको एक ग्रोथ जनरल बना के दें, उसको एक कॉपी दें, उसको कहें कि रोज़ाना अपनी कारकर्दगी लिखे कि आज मैंने ये नई चीज़ हासिल की, आज मैंने ये नया तजुर्बा सीखा है, आज मैंने ये नया दोस्त बनाया है, आज मैंने ये नई गेम खेली है, और आज मैंने ये काम किया है। यानी कि डायरी लिखना बनाएं, सिखाएं। एक ग्रोथ जर्नल बने, एक रसाला ग्रोथ का बन जाएगा, जिसमें वो अपनी सारी जो अपनी रोदाद है दिन की, वो लिखा करेगा और आप उसको देख लिया करें। और बेशक आप दूसरे तीसरे दिन या चौथे पांचवें दिन उस पर अपने रिमार्क्स दे दिया करें कि आपने बहुत अच्छा किया है, वेल डन, वेल एफर्ट्स। तो इस तरह से आप बच्चे अपने को ग्रो करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। जाना हमने तो जाना ही है, पीछे क्या रह जाएगा? हमारी जायदाद क्या है? हमारा बच्चा, हमारा अच्छा बच्चा, जो दुनिया में भी हमारा नाम रोशन करेगा, और अगर वो अच्छा हुआ तो मरने के बाद भी उसके अमाल हमारे काम आएंगे। वो हमारे लिए दुआ करेगा, वो हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और आगे शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।